Hello students, welcome back to Biochem Academy. So today I'm representing part 3 of Is Matter Around Us Pure? Let's get started then. After this chapter will be completed and we'll start some other chapter of biology. Okay, so we are going to see separating components of mixture. And there is a mixture in which substances is mixed. So how to separate? There are different methods which we are going to see today. Let's check it out. Number one, colored component that is called as dye. Okay, from blue black ink. How we will separate dye from ink? First of all, keep in mind ink is a mixture of dye and water. Okay, ink is a mixture of dye and water. See, I have written it. Okay, so first of all, what you will do, take a beaker. Okay, borosilicate beaker, and fill water in it. Put above burner on stand. Start the burner. Start heating it. Water will boil, टेम्परेचर बढ़ेगा, इट विल स्टेटली चेंज फ्रॉम लिक्विड टू गैस, वेपर्स निकलना स्टार्ट हो गए. पुट अ वॉच ग्लास इज द डीप कर्व ग्लास इन विच यू विल टेक अ ink. So take a ink on watch glass and keep it above the beaker. So because of that vapor, this watch glass will get heat, है ना. And watch glass के अंदर क्या ink, and ink is a mixture of dye plus water, and because of that heat the water in the ink will evaporate, separating the dye from water. So this is the method which is called as evaporation method. Let's check it out. Put watch glass on beaker having water which is boiling. Component can be separated by evaporation. Evaporation के थ्रू ये component को आप separate कर सकते हो. This was the first method. Second, how we will separate cream from milk? Milk के कितने products है? Toned milk, fatless milk, double toned milk, cream and many other things. हाँ, buttermilk है, yogurt है, then cheese है, curd है. Okay, so how you separate cream from milk? First of all, milk is a colloid. हमने last lecture में देखा था. Milk consists of water, sugar that is lactose sugar, and protein. कौन सा protein? casein. Fat that is butter, है ना. तो component mix होके बनता है milk. Milk is a heterogeneous mixture. Now इसमें से अगर मुझे fats को या protein को अलग करना, so what I will do is centrifugation. Centrifugation is a technique in which milk is revolved at a very high speed. Because of revolution at very high speed, either by hand or in a machine. बड़े कंटेनर्स इंडस्ट्रीज के अंदर मशीन्स होते हैं इन विच द मिल्क इज रिवॉल्व एट वेरी हाई स्पीड. बिकॉज ऑफ दिस रिवॉल्यूशन व्हाट विल हैपन, मिल्क के अंदर का जो फैट्स है, प्रोटीन है, सब सेपरेट हो जाएगा. ओके, सो इट विल फॉर्म टू लेयर. जो हैवी पार्ट है, डेंस पार्ट, ओके, डेंसर पार्ट विल सेटल एट द बॉटम. फैट वगैरह सब बॉटम में सेटल हो जाएगा एंड लाइटर पार्टिकल विल सेटल एट टॉप. So like these two layers बन गए, दो लेयर बन गए. So topmost lighter particle gets separated, उसको निकाल लेते हैं with the help of suction or by some technique. So like this we can get cream from milk. Okay, centrifugation. Application कहाँ यूज होता है ये? डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी, ब्लड टेस्ट वगैरह में, आरबीसी काउंट, हेमोग्लोबिन काउंट फाइंड करने के लिए एंड मेनी अदर टेस्ट. यूरिन टेस्ट में काम आता है ये. सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम. And usually after washing clothes, we put clothes in dryer. What happens there? The clothes get dry. How? That revolves at very high speed. Because of revolving, surface area increases. Because of increasing surface area, that water squeezes out. Okay, centrifugation. The next is separate two immiscible liquid. What is immiscible? The liquid which is not dissolving in each other. एक दूसरे में mix नहीं होता. वैसे लिक्विड को कैसे सेपरेट करेंगे? Okay, take a funnel. Funnel is like a container shape होता है ऐसा पूरा, in which you can pour the two liquid which is get mixed. For example, oil and water. If you are mixing oil and water, क्या वो mix हो गए? नहीं हो गए. We are taking example of kerosene oil from water. हमें oil को, kerosene oil को separate करना है water से. So what we will do, एक funnel के अंदर उसको pour करेंगे हम लोग and we'll keep it aside for few hours. कुछ टाइम के लिए अलग रखेंगे जिससे वाटर एंड केरोसिन विल गेट सेपरेट. तो जो बॉटम नीचे की साइड रहेगा दैट विल बी वाटर एंड ऊपर जो रहेगा पानी के दैट विल बी और केरोसिन ऑयल. ओके, फिर उसको थोड़ा भी मूव नहीं करना है, कीप इट अनडिस्टर्ब. और फनल के नीचे ना लाइक अ टैप जैसा होता है, बोलते हैं स्टॉप कॉक. क्या बोलते हैं? स्टॉप कॉक. सो वी विल ओपन स्टॉप कॉक एंड जो लोअर लेयर होगा वाटर का वी विल पोर आउट. सो अंदर जो बचेगा दैट विल बी ओनली योर kerosene oil. Okay, so this was the method of separating immiscible liquid. Class, like every time I will suggest you please make a notes. बहुत important है ये. Just have a look once till here. So next part is
separating salt from NH4Cl. The name of this NH4Cl is ammonium chloride. As we know, sublimation देखा था हमने. The process in which solid directly converts into gaseous state without passing through liquid state is called as sublimation. Solid से direct gas liquid state में pass नहीं होता. camphor है, naphthalene है, ammonium chloride भी उसके अंदर एक example है, if you remember then. So ammonium chloride को separate करना है salt से, salt में mix कर दिया. Okay, so what we will do, एक चाइना डिश लेके we will heat it. Because of heating what will happen, temperature बढ़ेगा. Because of rise in temperature ammonium chloride will evaporate, leaving the salt behind. separate हो गया. and अगर आपको ammonium chloride भी चाहिए, so ऊपर you can keep a container through which it separates out and condenses and again forms a solid. That is the desublimation, or also called as deposition, reverse of sublimation from gaseous state to solid state. ऐसे करके salt and ammonium chloride दोनों separate हो जाएगी. ठीक है. Salt remains in the dish. heat करोगे solid state से convert होगा gaseous state. Fifth one is dye in black ink a single color? क्या जो dye है ink के जो single color है black dye? No. black ink के अंदर no, it is not. तो अगर मुझे उस ब्लैक इंक में से डाइस कलर्स को सेपरेट करना है, सो हाउ आई विल सेपरेट इट, कैसे सेपरेट करूंगा मैं? द मेथड इज क्रोमेटोग्राफी. ओके, द मेथड इज क्रोमेटोग्राफी. क्या होता है इसके अंदर? डाई इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर कलर. वी नो दैट. वी विल टेक अ फिल्टर पेपर. ओके, एक फिल्टर पेपर लोगे आप रेक्टेंगुलर शेप का लॉन्ग. उसके अंदर लीविंग सम सेंटीमीटर फ्रॉम बॉटम यू विल मेक अ लाइन एंड यू मेक अ सर्कल वेर यू विल पुट अ ड्रॉप ऑफ इंक. क्या रखोगे आप? इंक स्पॉट. ठीक है. सो एज यू पुट इंक ऑन इट, क्या होगा? फिल्टर पेपर के अंदर एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होगा, है ना? लेट्स चेक इट आउट. देखो, इंक हैज वाटर. इंक के पास क्या? इंक इज अ मिक्सचर ऑफ डाई एंड वाटर. तो इंक हैज वाटर एज अ सॉल्वेंट. वाटर राइजेस इन फिल्टर पेपर. ये लाइन से फिल्टर पेपर से ऊपर वाटर राइज होना स्टार्ट होगा. तो मोर सोल्यूबल कलर कंपोनेंट राइजेस फास्टर इन पेपर. जितने सोल्यूबल ज्यादा हो गए उतना फटाफट सेपरेट होगा. सपोज कंसिडर करो उसके अंदर था रेड एंड ऑरेंज कलर. सो रेड यहाँ तक आएगा तो ऑरेंज थोड़ा ऊपर तक जाएगा. लाइक दिस डिफरेंट कलर्स विल बी सेपरेटेड डिपेंडिंग अपॉन इट्स सोल्यूबिलिटी. जितना ज्यादा सोल्यूबल रहेगा वो कलर उतना ज्यादा फिल्टर पेपर में ऊपर तक ट्रेवल करेगा. ठीक है. एंड कलर सेपरेट. एप्लीकेशन कहाँ पे यूज होता है ये? सेपरेटिंग कलर इन डाई लाइक दिस मेथड. पिगमेंट्स, नेचुरल कलर जो प्लांट से ऑब्टेन होते हैं, नेचर से ऑब्टेन होते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं. ब्लड के अंदर अगर ड्रग्स है, ओके, सो टेस्टिंग के लिए ड्रग को भी ब्लड में से सेपरेट करने के लिए ये मेथड यूज होती है. ओके क्लास, वी लेफ्ट एप्लीकेशन ऑफ सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड. इसके एप्लीकेशंस रह गए. लेट्स चेक इट आउट. उसके एप्लीकेशंस मैंने यहाँ पे लिखे हुए. सेपरेट ऑयल एंड वाटर ऑलरेडी लिखा हुआ है हमने. द नेक्स्ट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर. और जिसमें से आप अपना मेटल प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो नेचुरली अगर होता है अर्थ क्रस्ट में. आयन को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसके ओर से. कौन सा ओर है आयन का? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, बहुत सारे, बट हेमेटाइट प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट करवाता है आयन. सो फाइनली स्लैग इज रिमूव्ड फ्रॉम टॉप एंड मोल्टन आयन फ्रॉम बॉटम. हमें आयन मिल गया बॉटम में, हैवी होता है, सेटल डाउन हो जाएगा. मोल्टन आयन नीचे से मिल गया हमें हाई टेम्परेचर वाला. बट ऊपर जो बचेगा दैट इज आवर स्लैग. स्लैग क्या है? आफ्टर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल जो आपका बचेगा ऑक्साइड एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड वगैरह मिक्सचर ऑफ मेटल, दैट इज कॉल्ड एज स्लैग. ये स्लैग इज नॉट अ वेस्ट. स्लैग के अंदर से भी आप दूसरा कोई मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हो अगर बहुत लार्ज क्वांटिटी में है तो प्रॉफिटेबल है भी. ओके, द नेक्स्ट सिक्स्थ मेथड इज सेपरेटिंग मिक्सचर ऑफ टू मिक्सिबल लिक्विड. ये था इमिसिबल, जो मिक्स नहीं होते. अभी दो ऐसे लिक्विड जो मिक्स हो रहे. सो इफ इट इज मिक्सिंग, व्हाट यू विल डू? कंसिडर एन एग्जांपल ऑफ एसीटोन, नेल पॉलिश रिमूवर. एसीटोन एंड वाटर दोनों को मिक्स किया हमने. नाउ आई वांट टू सेपरेट इट. जब आई मिस्टेकली मिक्स हो गया कोई इंडस्ट्री में वगैरह स्पिलिंग की वजह से, नाउ थ्रो तो नहीं कर सकते, लॉस हो जाएगा. सो उसको सेपरेट करना है. सो हाउ वी विल डू इट? ओके, उसको हम लोग एक सिंपल डिस्टिलेशन मेथड के थ्रू करेंगे. डिस्टिलेशन में होता क्या यूजुअली, वो मिक्सचर को हम हीट करते हैं. बिकॉज ऑफ हीटिंग वो दो लिक्विड में से जो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट लो है, द लिक्विड whose boiling point is less evaporates fast. For example, acetone and water. Okay, acetone का boiling point है 56 डिग्री सेल्सियस, वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस. तो जैसे हीट करना स्टार्ट किया, 56 डिग्री टेम्परेचर राइज हुआ इन थर्मोमीटर, who will start to evaporate? acetone. ठीक है, तो जितना भी acetone था 56 पे वो evaporate हो जाएगा. तो फाइनली what is left behind?
वाटर, बट मुझे एसीटोन को थ्रो नहीं करना, उसको कलेक्ट करना है, तो उसको वापस कंडेंस करके मैं सेपरेट फनल में स्टोर कर सकता हूँ. ठीक है. अगर आप देखोगे डिफरेंस इन द मेल्टिंग पॉइंट, ये दोनों के सॉरी बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस देखोगे, इट इज 100 माइनस 56 44 डिग्री सेल्सियस. ओके, सो 25 डिग्री से ज्यादा है ये, मतलब डिफरेंस इज मोर देन 25, दैट इज 44 डिग्री सेल्सियस. तो अगर डिफरेंस 25 डिग्री से ज्यादा है तो वी यूज मेथड कॉल्ड डिस्टिलेशन. बट इफ दो लिक्विड मिसिबल, दैट इज डिसॉल्व भी हो रहे एक दूसरे में, एंड उसका मेल्ट सॉरी बॉइलिंग पॉइंट भी, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस, दैट इज लेस देन 25 केल्विन, तो उसको कैसे सेपरेट करेंगे? वी विल सेपरेट इट आउट बाय दिस मेथड, डिस्टिलेटिंग कॉलम के थ्रू फ्रैक्शनल डिस्टिलेटिंग यूज करेंगे. व्हाट इज रिटन? इफ डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू कंपोनेंट इज लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस, देन वी डू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. क्या करेंगे हम लोग? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे. Now, the method is same like distillation, but यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग? सिर्फ one thing, we are adding a fractionating column. मतलब सर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, जब भी वो दो लिक्विड का डिफरेंस में 25 डिग्री से कम है तो चांसेस है मिक्स होने के वापस इवोपरेशन के टाइम पे. सो व्हाट हैपेंस हियर इज, ऐसा ना हो उसके लिए फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में जैसे उसके वेपर्स जाएंगे अलग अलग लेवल के ऊपर, दे विल सेपरेट आउट, लाइक सेपरेशन ऑफ पेट्रोलियम, सेपरेशन ऑफ गैसेस फ्रॉम एयर, है ना. तो पेट्रोल, डीजल वगैरह ये सबको सेपरेट करने के लिए पेट्रोलियम इंडस्ट्री के अंदर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम रखते, बहुत बड़ा टॉवर जैसा होता है, अलग अलग पार्ट में वो गैसेस कंडेंस होके सेपरेट होते जाते हैं. ठीक है, सो लेट्स रीड आउट देन. ओके, एग्जांपल गैसियस सेपरेशन ऑफ एयर, एयर का गैसियस सेपरेशन, पेट्रोलियम सेपरेशन. इन फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, डिस्टिलेटिंग कॉलम इज प्लेस्ड बिटवीन फ्लास्क एंड कंडेंसर. फ्लास्क जिसके अंदर वो आपका लिक्विड रखा हुआ है, एंड कंडेंसर जिसमें सेपरेट होगा, कंडेंस होगा. अगर हम लोग एयर के अंदर से ऑक्सीजन नाइट्रोजन को सेपरेट कर रहे हैं तो देखते हैं उसका पॉइंट क्या है लिक्विड स्टेट का. ऑक्सीजन का लिक्विड स्टेट -183, नाइट्रोजन -196. दोनों में डिफरेंस देखो क्या, तो है 13 डिग्री का डिफरेंस, है ना. -13 डिग्री का डिफरेंस है दोनों में. सो यहाँ पे टू सेपरेट वी विल कीप अ डिस्टिलेटिंग कॉलम. सो एयर में से सर ऑक्सीजन तो गैसियस स्टेट में, तो लिक्विड स्टेट में लाएगी कैसे? देयर इज अ मेथड. फर्स्ट ऑफ ऑल एयर को सक्शन के थ्रू एब्जॉर्ब करेंगे एटमॉस्फेयर से, देन विल कंप्रेस इट. बिकॉज ऑफ कंप्रेशन दैट गैसेस पार्टिकल विल कम टुगेदर. बिकॉज ऑफ कमिंग टुगेदर व्हाट विल हैपन, इट विल फॉर्म अ कॉम्पैक्ट शेप. कॉम्पैक्ट शेप फॉर्म होने की वजह से, एंड दूसरी जो कंडीशन है, टेम्परेचर इज रिड्यूस at very low temperature and pressure is increased at very high temperature. Pressure increase होने की वजह से gaseous particle will get very compact to each other, and finally because of low temperature it will convert itself from gas to liquid. ठीक है, एयर को कंप्रेस करेंगे by increasing temperature, increasing pressure and decreasing temperature. Okay, it will form a liquid air because of these two conditions. ठीक है, this liquid air is allowed to warm. ओके, वापस लिक्विड है को क्या करेंगे, प्रेशर थोड़ा कम करेंगे जिसकी वजह से वार्म अप होगा इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. फाइनली द गैसेस आर सेपरेटेड डिपेंडिंग अपॉन बॉइलिंग पॉइंट. इन दिस वे यू कैन सेपरेट डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर इन लिक्विड स्टेट. लेट्स हैव अ लुक. ओके, क्लास ये बहुत इंपॉर्टेंट था. सो हियर वी आर कंप्लीटिंग CBSE 9 चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर. नेक्स्ट वीडियो के अंदर आई विल टेक अ टेस्ट ऑफ मैटर इन अवर सराउंडिंग end of this chapter. Then we'll start with the concept of biology. We hope you like this video. Do like, share it with your friends and subscribe my channel Biochem Academy. Thank you.